मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया। লিকাবালিত ফ্ৰীডম অৱ ৰিলিজন এক্ট 1978 বিৰুদ্ধে অন্বেষণত বহিল 3 সহস্ৰাধিক অৰুণাচলী খ্ৰীষ্টিয়ান লোক। আইন বাতিল নকৰিলে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ ভাবুকি। আজি সমগ্ৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগতে নামনি চিয়াং জিলাৰ লিকাবালিত অৰুণাচল প্ৰদেশ খ্ৰীষ্টিয়ান ফৰামৰ উদ্যোগত অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে বলবৎ কৰিবলৈ লোৱা ফ্ৰীডম অৱ ৰিলিজন এক্ট 1978 প্ৰতিবাদত পালন কৰা হয় দিনজোৰা অন্বেষণ কাৰ্যসূচী। অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে 1978 চনতে প্ৰণয়ন কৰিছিল ফ্ৰীডম অৱ ৰিলিজন এক্ট 1978 নামৰ এখন ধৰ্মীয় আইন। কিন্তু সেই সময়ত সমগ্ৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত উক্ত আইনখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হোৱাত আইনখন কাৰ্যকৰী নকৰাকৈ থাকি যায়। সম্প্ৰতি 45 বছৰ পিছত চৰকাৰে সেই খ্ৰীষ্টিয়ান বিৰোধী আইনখন পুনৰ বলবৎ কৰিবলৈ খোজাত জাঙুৰ খাই উঠিছে সমগ্ৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ খ্ৰীষ্টানধৰ্মী ৰাইজ। আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰি আজি অৰুণাচল প্ৰদেশ খ্ৰীষ্টান ফৰাম নামৰ সংগঠনটোৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগতে নামনি চিয়াং জিলাৰ লিকাবালিস্থিত নগৰ গীৰ্জাৰ প্ৰাংগণত উক্ত আইনখনৰ বিৰুদ্ধে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আবেলি 5 বজালৈকে নামনি চিয়াং জিলাৰ 3 সহস্ৰাধিক খ্ৰীষ্টানধৰ্মী ৰাইজে অন্বেষণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। আইনখন খ্ৰীষ্টিয়ান বিৰোধী বুলি আখ্যা দি চৰকাৰে আইনখন সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে অনাগত দিনত সৃষ্টি হ'বলগীয়া ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ বাবে চৰকাৰ জগৰীয়া হ'ব বুলি প্ৰতিবাদীসকলে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকীয়াই দিয়ে। Government of Arunachal Pradesh enacted an act called Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978. But the act was remained dormant for 46 years. But now this year, 2024 onward, government is going to implement this act. This act is draconian. It is against the Christian community because it is directly, it is an anti-conversion bill. Therefore, today we on behalf of Arunachal Christian Forum stand here to protest against this bill as one day hunger strike. So our demand is the repeal of the controversial Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978. Pradesh Freedom of Religion Act 1978 and draft rules thereto violate Article 25 and 26 of Indian Constitution. India is a secular country, upholds secularism and promotes communal harmony. ACF Arunachal Christian Forum reject this repressive act against indigenous Christian population of Arunachal Pradesh. Religious freedom is our constitutional right. All Arunachalis are one. Do not divide us on the basis of religion. Let live and let live. This is our demand. You see, this bill is completely in violation of this Article 25 and 26 of Indian Constitution. And this bill, actually this act is an obsolete act. It is an outdated act. And it has been now revived by the government after 46 years. So this act is an obsolete. That's why it is also unconstitutional. And this act also is discriminatory. Actually, it is, as our president has said, it is targeting the Christian community. And there is a lot of chances misuse of this act, especially the Christian community. They will be harassed by the concerned authority by using this act. So that is why there is no religious violence recorded so far since 1978 in our state and in our district. So why this government is trying to implement this act? So we don't have religion. Actually, we tribals, we don't have religion. And we are not converted. Though I am a Christian, I am not converted. I adopt Christianity as my faith. हम लोग चाहता है कि ये गवर्नमेंट जो है हम लोग का ये डिमांड है कि इमीडिएटली ये एक्ट को रिपील करना है और इसको लागू नहीं करना है, नोटिफिकेशन भी इशू नहीं करना है। इसलिए हम लोग आज हंगर स्ट्राइक जो है रखा है 9 बजे से लेके 5 बजे तक का। और हम लोग का जब तक रिपील नहीं होगा तब तक हम लोग जो है अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के अंदर में हम लोग जो है ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है इसके अगेंस्ट में जारी रखेगा। जब तक रिपील नहीं होता है हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बहुत दिल दर्द होके आए हैं, ये कोई बच्चा का खेल या मजाक नहीं है। द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 क्यों इनेक्ट करना पड़ा वो तो हम पता नहीं, लेकिन हम समझ सकता है कि उन दिनों में हमारे अरुणाचल में क्रिश्चियनिटी आगे बढ़ रहा था और हमारे मसीही लोगों को पाबंदी लगाने के लिए ही
और इसका कन्वर्सन को रुकाने के लिए ही टारगेटेड करते हुए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द देन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जनता पार्टी गवर्नमेंट था, अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये इंडिजिनस पे बिल नाम से लाया और 25 अक्टूबर 1978 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको एसेंट देने के बाद ये एक्ट बन के अभी तक पड़ा हुआ है। 1979 से जो ACAC फॉर्म किया था, इस एक्ट को रिपील करने के लिए आवाज उठाया। रिपील तो नहीं किया मगर इसको डोरमेंट करके रखा हुआ था, कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ था। अरुणाचल का क्रिश्चियन लोग फिर से 2000 में उस ACAC को ACF का नाम से इसी चर्च में हम लोग फिर से गठन करके सारा अरुणाचल का क्रिश्चियन लोग एक होके अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम नाम से फॉर्म किया। और तब से हम लोग इस एक्ट को रिपील करने के लिए ड्यूरिंग द लीडरशिप ऑफ गेवंग आपांग, चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश, हम लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट किया। मैं ACF का फाउंडिंग सेक्रेटरी भी हूँ। मैं जानता हूँ ये लॉ बहुत ड्रैकोनियन है और बहुत ही डेंजरस वाला, जो हमारे स्पेशली क्रिश्चियनिटी को और क्रिश्चियन धर्म को अरुणाचल में होने नहीं देगा बोल के एंटी कन्वर्सन लॉ का रूप में ये इनेक्ट किया गया लॉ है। ये लॉ हमें पाबंदी ही नहीं, हमारे लिए बहुत डेंजर होगा और हमारे आने वाला भविष्य। आज हम क्रिश्चियन हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानता है, लेकिन हमारे बच्चे इसमें नहीं जा पाएंगे। ऐसा देख के ACF आज ये कदम उठाना पड़ा कि ये तो हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है। आज ACF इसका खिलाफ में आवाज उठा रहा है। इसको सरकार जैसे भी वो सुनना चाहिए और इस बात को इवन अभी का प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर भी समझा है, क्योंकि हम लोगों ने बोला कि ये लॉ को रिपील करना चाहिए, ये ड्रैकोनियन है बोल के उनको जब अरुणाचल में एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, डिप का, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल अफेयर्स, हम लोगों ने मेमोरेंडम भी सबमिट किया, अपील भी किया। तब उन्होंने बोला हाँ ये लॉ के बारे में मालूम नहीं था, इसको ये तो बेकार है, ये क्यों ऐसा लॉ पास किया है, इसको हम देखेंगे बोला। और 2018 29 जून को उन्होंने बंदरदुआ सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च में घोषणा भी किया था कि इस एक्ट को मैं रिपील करेगा। लेकिन आज जाके देख रहा है तो ये उल्टा ही हो रहा है। रिपील करना तो बहुत दूर की बात, उन्होंने जो अपना मुंह से घोषणा किया था उसको शायद भूल गया है क्या आज इसको लागू करने के लिए रूल्स फ्रेम कर चुका है और आज को आने वाला दिनों में कैबिनेट अप्रूव करने के बाद लागू करेंगे। तो हम का घर ही आने वाला है, शायद होते होते ये मणिपुर जैसे सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है। इसलिए हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी ये चाहता है कि हमारे भाई का साथ भाई को ना लड़ाए, कम्युनिटी का साथ कम्युनिटी को ना लड़ाए, हम शांति को चाहा। इसलिए इसको रिपील करना है, लागू करेगा बोलेगा तो ये बहुत ही खराब दिन देखने को देगा। इसलिए इसको सरकार याद रखते हुए, ध्यान देते हुए रिपील करना है बोल के हम लोग आज डिमांड करते हुए ये 1 डे हंगर स्ट्राइक से शुरू कर रहा है। गवर्नमेंट अगर नहीं मानता है तो मार्च 6 तारीख के बाद हम लोग उसको तय करेगा। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। मुझे और हम सभी को यही लग रहा है कि ये हिंदुत्व का ही असर है, हिंदुत्व एजेंडा ऑफ RSS और BJP का ये असर है, हमें ऐसा लगता है। ये पार्टी या ये सरकार का पार्टी जो है हिंदुत्व एजेंडा को प्रमोट कर रहा है या सेकुलरिज्म को एसोसिनेशन कर रहा है और फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहा है, स्पेशली क्रिश्चियन लोगों को। इसलिए हम लोग ये आवाज और ये कदम उठाना पड़ रहा है। अरुणाचल शांति राज्य है, शांति ही रहने दे, शांति ही रहे। धेमाजी जिलाৰ পৰা সঞ্জয় নাথৰ ৰিপৰ্ট E24 লাইভ ব্ৰেকিং।